Good morning, students. Welcome back to the class. The address. Hope you'll complete the chapter today, and I'm sure that you all are have read the chapters properly. And I've repeatedly told many times, if you are having any problem in understanding any line, any word, anything, please ask me. You are free to ask. If you have any problem in putting the doubt in the group, you can personally message me. And if any of the new joinees you have faced any problem, kindly let me know it about it. Okay. Just inform me what your issue is. We'll solve it out at the earliest. And the previous chapter, we were in the previous class, 2-3 classes, we were in the chapter, the address. How you saw the wartime, what problems war can cause to anyone. So this chapter highlights the problems war can cause. And all of you know 2 world wars have occurred in our history. And this happened during the Second World War when Germany were in a very invading mood and they invaded Holland. And here the author, she lost a few things because her mother's old friends took the things during the World War to protect the things. And the author, after the war, lost her mother, and few times later, she remembers about the things and just tries to recover it. And unfortunately, she's not able to get it. Okay. The previous class we saw when she went there for the second time, the lady Darling was not there. Her daughter was there, and she was just waiting for that lady. Let's see if she meets the lady. Yes, she leaves the house. Yeah, what happens? So at that time, again I heard the unnatural sound of my voice. और मेरा voice एक और बार बाहर आया, and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. एक बार मुझे याद है, मेरे मम्मी जब मैं मम्मी के टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे ये सिल्वर पॉलिश करने के लिए. इधर सिल्वर मतलब द कटलरीज, द नाइफ्स एंड फॉर्क्स एंड दैट थिंग्स वी यूज इन द किचन. हमारे इधर ज्यादातर स्टील का यूज करते हैं, कुछ घरों में लकड़ी का भी होता है, कुछ में पोर्सलिन चाइना मड से भी बनाया होता है. बट इन दिस पर्टिकुलर हाउस ऑथर के घर में द सिल्वर मीन्स द कटलरीज यूज्ड इन द किचन विच वर मेड ऑफ सिल्वर. It was a very long time ago, बहुत सालों पहले की बात है, and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. उस दिन देखो बहुत साल पहले की बात है, मैं बहुत बोर हो रहा था शायद उस दिन, और मेरा तबीयत सही नहीं था. उस दिन मेरे मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा क्या तुम मुझे हेल्प करोगे किचन के काम में. क्या काम है? ये स्पून पॉलिश करने के लिए. As she had never asked me before, ये पहली बार मेरा मदर मुझसे कोई हेल्प मांग रहे किचन के लिए, इससे पहले कभी भी नहीं पूछा था. I asked her which silver, मैंने पूछा मम्मी कौन सा सिल्वर पॉलिश करना है. She meant and she replied, और आप कौन सा सिल्वर को मीन किया है पॉलिश करने के लिए. And she said surprisingly, और उन्होंने जो रिप्लाई दिया वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था. That it was a spoon. तो स्पून जो है कबर्ड में रखा स्पून वो सिल्वर का बनाया हुआ है. It was made of silver. And I was surprised to hear कि वो सिल्वर का बनाया हुआ था. Forks and knives, of course. And that was a strange thing, और बहुत अजीब लग रहा था मुझे. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. और जो cutlery daily, the knife हो, fork हो, spoon हो, जो हम यूज करते थे वो सिल्वर का बना था. मैं अभी तक मुझे मालूम नहीं था. I was very surprised to hear. The girl laughed again. ये सुनकर गर्ल जोर से हंसने लगी. I bet you don't know it is either. तो मैंने उस गर्ल से पूछा, मुझे पक्का मालूम है कि तुम्हें भी ये मालूम है कि ये सिल्वर का है. I looked intently at her. तो उसका रिप्लाई के लिए मैंने उनको गौर से देखा. What we eat with, जिससे में हम खाते हैं. She asked, well, do you know? क्या तुम्हें पता है? और ने उनसे पूछा. She hesitated. उन्होंने बोला नहीं मुझे भी पता नहीं था.
शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉयर, तो वो साइड में जाकर एक ड्रॉयर खोल के मुझे दिखाना चाहते थे। आई लुक इट्स इन हियर, मैं देखता हूँ तुम जो सिल्वर स्पून के बारे में बोल रहा ना, मैं देखता हूँ क्या वो सिल्वर का है बोल के वो ड्रॉयर खोल रहा था। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, तो एक टाइम उस टाइम पे मुझे कुछ याद आया, मुझे एकदम से खड़ा हो गया, जंप किया अप। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मेरा ट्रेन जाने वाला है, मुझे जल्दी जाना है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर, वो ड्रॉयर खोलने ही वाला था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरे मदर के लिए वेट नहीं कर रहा? तुमने बोला था कि मदर से मिलना है, क्या तुम नहीं मिल रहे क्या? नो आई मस्ट गो, आई वेटेड वॉक टू दी डोर, मैं डोर तक चला गया। द गर्ल पुल द ड्रॉयर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं खुद ही देखता हूँ कि वो सिल्वर है कि नहीं। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks, और मैं जा रहा था तो पीछे कमरे से वो लड़की वो स्पून्स और फॉक्स देख रहे थे, उसका आवाज मेरे कानों में आ रहा था। ओके, देन आई टर्न बैक टू स्टेशन, कुछ डिसीजन लेके मैं स्टेशन की तरफ चला गया। क्या एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, तो मैं जाते जाते सीट के कॉर्नर में जहाँ पर घर का नेम बोर्ड है उधर से मैंने वो नेम बोर्ड एक और बार देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, it said, I had been at number 46, मैं नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे था, मतलब वही एड्रेस जो सालों पहले मेरे मम्मी ने मुझे बोला था, जिनको मैं याद करके ढूंढ के आया है, उसी एड्रेस को मैंने एक और बार देखा। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और एड्रेस को कोई गलती नहीं था, करेक्ट एड्रेस था जो मम्मी ने मुझे बताया था, मैंने याद किया। Street, it said, I had been at, that address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. तो जो एड्रेस मैंने बहुत मुश्किल से याद करके आया, जो मेरे मम्मी ने सालों पहले मुझे बोला था, बट आज से मैं वो एड्रेस भूलना चाहता हूँ, वो आज से मुझे याद नहीं रखना। I wouldn't go back there because objects, और आज के बाद मैं इस एड्रेस पे कभी नहीं जाने वाला, ये डिसाइड किया मैं। क्यों नहीं जा रहा? Because the objects are locked in your लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो चीजें तुम्हारा मेमोरी से लिंक्ड है, जो तुम्हारा चीजें था विद अ फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पुराने टाइम्स का तुम्हारा मेमोरी से जुड़ा हुआ चीजें तुम्हारा मम्मी के टाइम पे इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, वो उनका वैल्यू खत्म हो जाता है। वो चीजें जो तुम्हारे मम्मी के थे एक टाइम पे, जिसपे तुम्हारा मेमोरीज लिंक्ड है, यादें लिंक्ड है, उस यादों का वैल्यू कम हो जाता है या उस चीजों का कम हो जाता है जब सेवेड फ्रॉम दम, व्हेन सेवेड फ्रॉम मतलब सेपरेटेड किया जाता है, जब वो आपसे सेपरेट हो जाते हैं। यूज, और कैसे सेपरेट हो जाता है? जब तुम्हारा चीजें तुम किसी स्ट्रेंज ओकेशन में, स्ट्रेंज तरह किसी और के अलमारा में उस चीजों को मिले। यू सी दम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, अजीब सराउंडिंग्स में तुम उसको जब मिले तुमसे अलग करके, तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। एंड व्हाट शुड आई, और ये भी नहीं, दूसरा रीजन है कि मैं ये चीजों को लेके कहाँ जाओगे, क्योंकि अभी मैं कहाँ रहते हैं। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, अभी मैं बहुत छोटा सा एक रूम में रहते हैं जहाँ पे ये सब चीजें रखने का जगह भी नहीं है। वेयर द shreds of blackout paper still hung along the window, जहाँ पे पुराना फटा हुआ पेपर्स इधर उधर लटकते हैं, मतलब बहुत पूरा एक पुराना, मतलब इतना अच्छा रूम में नहीं रहता मैं, जहाँ पे स्टिकर्स वगैरह जो चिपकाए वो फट के दीवार से नीचे निकल के आ रहा था। along the windows and no more than 100 of cutlery fitted in the narrow table drawer, और मेरे पास एक ही टेबल ड्रॉयर है, उसका नैरो ड्रॉयर में, छोटा सा ड्रॉयर में बहुत कम ही कटलरीज रख सकते हैं, इसीलिए मैं ये सब लेके जाके कोई फायदा नहीं है, मैं कहाँ रखेगा ये सब। तो इसीलिए एक तो है ये चीजें जिससे तुम्हारा मेमोरीज लिंक्ड है, वो अभी किसी स्ट्रेंज सराउंडिंग में पाया जाना और तुम्हें पता लगना कि ये मिलने का चांस नहीं है। सेकेंडली, ये चीजें अगर मुझे मिलेगा तो भी ये मैं लेके जाके कहाँ रखेगा, क्योंकि मैं अभी एक छोटा रूम में रहते हैं जहाँ पे एक छोटा सा टेबल का ड्रॉयर ही है और उसमें ये सब रखने का जगह भी नहीं है। ओके, सो व्हाट आई डिड, आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, इसीलिए मैं ये एड्रेस को फॉरगेट करना ही सोचा कि ये एड्रेस आज से याद करने के लिए कोई मतलब नहीं, और ये मेरे लिए सबसे इजीएस्ट थिंग होगा करने के लिए। ऑफ ऑल थिंग्स आई हैड टू,
फॉरगेट, मैंने जितना भी चीजें याद करना है ये सबसे इजीएस्ट रहेगी और अच्छा रहेगा कि ये मैं एड्रेस भूल जाऊं. That would be the easiest to forget the address. So, my dear students, I don't want to give any question for the day as we have test tomorrow. So, just today I taught you only a page. In 5 or 6 lines, write the summary of what you understood today in your own words and send to me before 1 p.m. tomorrow. Thank you. Have a wonderful day and all the best for your tomorrow's test. Thank you.